कुछ अर्न कर रहे हैं आपकी लाइवलीहुड के लिए, आप कुछ अर्न कर रहे हैं एंड यू आर सर्वाइविंग, right? You are earning something for your livelihood, that is known as economy. Fine. We are going to share here with parts of economy. We had a discussion regarding vital functions of an economy. This is all what we had yesterday. Okay. Special functions of economy अगर हम देखें तो we have production, consumption and capital formation. These three are the main vital functions of an economy. Production जब हम produce करते हैं, that means it includes producers. Consumption, what we consume as a consumer, right? We as a consumer, when we use some kind of product or we consume something, that is consumption. Next is capital formation. Capital can be divided into two parts: physical capital and human capital. As you know, human capital का मतलब होता है that human capital is an intangible asset. You cannot touch that. ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो आप, किसी का नॉलेज, किसी का एक्सपर्टाइज आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, है ना? दैट्स वाई ह्यूमन कैपिटल जो है वो इंटेंजिबल रहता है, कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो सकता, हम किसी का दिमाग किसी में नहीं डाल सकते, राइट? लाइक दैट वे. So after this vital functions, we are going to study here the reason why we should study economics, right? Economics हमको क्यों पढ़ना चाहिए? So very first reason here and very important term here we are going to see it is scarcity. Yes, Yash, can you just try with the short meaning of scarcity? Yes, very good. Scarcity means a shortage. Yes, perfect. See, here we have 2 points regarding scarcity that defines it. Scarcity refers to the limitation of supply in relation to demand for a commodity, right? And economics is concerned with selection of resources under conditions of scarcity. See beta, scarcity here mainly refer to the resources. Resources की scarcity होती है, right? And that's why हम आगे जो दो terms पढ़ने वाले हैं, that is because of resources and scarcity. See, in this picture you are able to see factors of production. There are 4 factors of production: land, labor, capital and entrepreneurship, right? All these 4 factors are the same what we had in last year, right? Small introduction I'll give regarding land, जो ज़मीन हम बोलते हैं जहाँ पे हम काम करते हैं. Labor includes human capital, जहाँ पे लोग काम करते हैं, जो what includes people. Capital is your investment, your money, right? What includes in a business. Entrepreneurship मतलब जब आप एक business run कर रहे हो with a group of people. Yes? See, here we are going to see a next economizing of resources. Economizing of resources means to use maximum resources. जितने भी available resources हैं हमारे पास, उसका maximum use करना is economizing of resources, right? See, as every coin has its two sides, there is one positive. Economics अच्छा है तो definitely there is a problem in economics, right? So that problem arises because of choice. Yes, Yashvi, can you please give a short revision of choices के बारे में? हमने कल क्या पढ़ा था? Please. Yes, yes, perfect. Black and white jeans का, right? Yes, हाँ, perfect, perfect. Yes, that is availability, scarcity of resources. Yes, Mehak, can you add something? Yes, perfect, perfect. Right? उसकी वजह से create होती है scarcity of resources. Are you getting it, Yash? Okay. उसकी वजह से क्रिएट होती है, चॉइसेस की वजह से क्रिएट होती है स्कैरसिटी रिसोर्सेज की, बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होते हैं. हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती,
रिसोर्सेज हमारे खत्म हो जाते हैं, लेकिन ह्यूमन वांट्स कभी खत्म नहीं होते, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होते। पहले हमारे पास नेचुरल हवा थी तो भी चल रहा था, फिर फैन आया उसमें भी चल रहा है, कूलर आया वो भी, एसी आया वो भी। दैट मीन्स हमारी वांट्स कभी हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, हमारी वांट्स बढ़ती ही जाती हैं टाइम के हिसाब से, right? See, unlimited human wants. We had one social media, now we have n number of social media, जहाँ पे हम लोग हम यूज कर सकते हैं सोशल मीडिया को, है ना? ओके, नेक्स्ट इज ऑल्टरनेटिव यूजेस। जब हम एक की जगह दूसरी जगह पे दूसरी चीज को, ऑल्टरनेटिव यूजेस के लिए आप बेस्ट ये लाइन बोल सकते हो, when you sacrifice one option for the better option। जब आप एक बेटर ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन को सेक्रीफाइस करते हो, उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव यूज, ऑल्टरनेटिव चॉइस। ओके, सी हियर इज अ वेरी short and sweet definition for economics. Economics is a social science which studies the way a society chooses to use its limited resources, which have alternative uses, to produce goods and services and to distribute them among different groups of people. Right? Okay. See, next. As I told you that we are going to deal with two segregations of economics here, micro and macroeconomics. As you can see, micro and macroeconomics में microeconomics मतलब एक बड़ी सी, मतलब a single unit to study, right? Micro मतलब जब एक individual की study कर रहे हैं, that includes micro. एंड मैक्रो मतलब जब इतने सारे लोगों की एज अ होल, इट कैन बी वर्ल्ड, कंट्री, स्टेट, एज अ होल यूनिट जब हम किसी चीज की स्टडी करते हैं, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? सी, हियर वी आर गोइंग टू सी difference between microeconomics and macroeconomics. Yes, Mehak, can you tell me the one basic point of micro and macroeconomics? Please put your videos on. Yes, the new, I'm sorry, but please rename your name. I'm not able to recognize. And put your video on, please. D90C5E00, please put your video on. Yes, Mehak, continue. Yes, Mehak, one point regarding microeconomics and macroeconomics. Try. Yes, Yashvi. Come on, try. It's okay. New student, please rename your this numbers, please, with your name, and please put your video on. Yes, Yashvi, come on. One point regarding micro and macroeconomics. Yes, very good. Smart enough. Yes, perfect. It is correct, beta.
Don't hesitate, you know it. Yes, Yash, you would like to say one point regarding that? You can try. Yes, Yash, you can try. जितना आपने अभी तक समझा उसके बेसिस पे एक पॉइंट यू कैन ट्राई. ओके. Very good. Okay, fine. Good try. Good try. See, beta. Here we are going to see basically the difference between microeconomics and macroeconomics. Very first thing, I'll go with the microeconomics with its meaning. Right? See, students. माइक्रोइकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल बिहेवियर इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स के साथ डील करता है. राइट, एज वी हैड एन एग्जाम्पल ऑफ दैट ट्री के माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब जब हम एक की स्टडी कर रहे हैं. राइट, जब हम एक डिमांड एक सप्लाई एक फैमिली एक घर एक इंसान इंडिविजुअली व्हेन वी आर डीलिंग विथ डिमांड सप्लाई वॉन्ट्स, that all things include in microeconomics, right? And the main objective of microeconomics is that उसकी वजह से factor of production, can anyone tell me which are the four factors of production? Which are the four factors of production? Yes, entrepreneurship. Yes, four factors of production are land, labor, capital and entrepreneurship. Yes, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है हमको किसी एक फैक्टर की उसकी प्राइस डिटरमाइन करने के लिए काम आता है. इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. राइट, एंड दैट इज व्हाई माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थियोरी. प्राइस थियोरी उसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हमको प्राइस डिटरमाइन करने के काम आता है. स्टूडेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड दिस एज अ की पॉइंट. हाँ, कि उसको प्राइस थियोरी कहा जाता है. प्राइस थियोरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो प्राइस डिटरमाइन करने के काम आता है. क्लियर इनफ? ओके, सी here we are having examples of microeconomics. Microeconomics के example में definitely we are going to have individual income and individual output. क्यों individual income and individual output? Because it deals with individual demand and individual supply. इसीलिए उसमें individual income and individual output consider किया जाता है. Right? It involves limited degree of aggregation. Yes, students, can you try with the meaning of aggregation? Any three of you? Meaning of aggregation? Yashvi and Mehak should know. Yesterday I told you. Right, Mehak, please put your video on. Yes, you want to try with the meaning of aggregation? You can just try. That's fine. Mehak, please put your video on. Good, good. Okay, fine. Yes, aggregation का मतलब. Come on, यशवी, come on, महक. कल मैंने बताया था आपको. मार पड़ेगी. फोन पे से ही मारूंगी मैं. ओके, आई रिपीट. एग्रीगेशन का मतलब है जब सब लोग साथ में, टुगेदर, व्हेन इट कम्स टुगेदर, दैट इज नोन एज एग्रीगेशन. आया समझ?
यहाँ पे जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ डील कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअल मैटर्स को काउंट करता है. सो दैट इंक्लूड्स लिमिटेड डिग्री, मतलब यहाँ पे लिमिटेड कलेक्शन ऑफ पीपल होता है. यहाँ पे लोग साथ में आए ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये इंडिविजुअल स्टडी होता है. समझ आया बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई प्रॉब्लम अभी तीनों में से किसी को? श्योर? फिर कल मैं पूछूं तो आना चाहिए. हाँ यश, अब तो कल आपसे भी पूछूंगी मैं. Okay, good. See, now we will go to macroeconomics. Macroeconomics is a study of the economy as a whole. मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पूरी इकोनॉमी की स्टडी करता है, इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, इकोनॉमी एज अ होल. जब हम नेशनल इनकम, जीडीपी, ये सब कुछ कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पे सबकी इकोनॉमी को कंसिडर किया जाता है, उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, द मेन टूल्स फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. अब प्लीज मुझे रिपीट करके बताओ एग्रीगेट का मतलब. गुड गुड गुड. जब साथ में, जब कलेक्टिवली हो रहा है. यस यस, ऑल टुगेदर. एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मतलब सबकी डिमांड और सबकी सप्लाई को जब कंसिडर किया जाता है उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स. राइट? Macroeconomics here determines the income and employment level of economy. Macroeconomics किसी फैक्टर को, किसी प्राइस को डिटरमाइन नहीं करता. मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल, हमारी इकोनॉमी का इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल डिटरमाइन करता है. क्लियर स्टूडेंट्स? द सेकेंड नेम फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स. देखो स्टूडेंट्स, जैसे हमने प्राइस थियोरी देखा माइक्रो के लिए, क्योंकि वो प्राइस डिटरमाइन करता है. ये क्या डिटरमाइन करता है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. राइट? तो इसका सेकेंड नेम होगा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियोरी, बिकॉज इट स्टडीज द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी. इजंट इट इजी टू रिमेंबर? गुड. सो प्लीज रिमेंबर दिस, है ना? दोनों के ये 1 मार्कर एमसीक्यूज में भी आपको पूछ सकते हैं. दिस कैन बी अ ट्विस्टेड क्वेश्चन ऑल्सो कि विच व्हाट इज द अदर नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इट कैन बी व्हाट इज द अदर नेम ऑफ प्राइस थियोरी, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियोरी, व्हाई इट इज नोन एज. राइट? क्यों इसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियोरी कहा जाता है? बिकॉज इट डिटरमाइंस दिस 2 फैक्टर्स. करेक्ट? यस. सी, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है हमको नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट को कंसिडर करने के काम आती है. एंड इट इन्वॉल्व्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, मतलब यहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ लोग आते जाते हैं. ठीक है? This was the major difference between micro and macroeconomics. Now we are going to have 2 types of economics here, positive and normative economics. ठीक है? Positive and normative economics. See, again we are going to have a difference between. Don't worry about the notes. This whole PPT will be shared with you. Yes? And I'll be sharing the PDF of first chapter as well, such that it would be easy to go through. Yes. See beta, when we here talk about positive economics, normative economics, positive economics का मतलब है कि जब एक हकीकत पे, एक सच्चाई पे, एक ट्रू इकोनॉमिक के फॉर्म में एक सही चीज उभर रही हो. राइट? मेनली उसका मतलब है it deals with the things as they are. There is no duplication, there is no fake, there is nothing जो कि हम estimate या prediction करके कर रहे हो. Right? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जो चीज सही है उसके बेसिस पे स्टडी होना. क्लियर इनफ?
यस, कोई डाउट अभी तक के पार्ट में? ऑल थ्री ऑफ यू, एनी डाउट? गुड। सी, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम पहले। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब जो चीजें सही हैं, जो चीजें फैक्ट के बेस पे हैं, उन चीजों को स्टडी करना, राइट? दैट इज नोन एज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इट इज बेस्ड अपॉन रियल फैक्ट्स, वॉट एवर द ट्रुथ इज। इसमें हम एक्चुअल डेटा ही वेरीफाई करते हैं। हियर प्योर एंड न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, right? The main purpose for this positive economics is that it aims to make real description of economic activity. जो सही इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके लिए वो एम करता है, उसके लिए ही वो वर्क करता है। यस, इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट्स। वैल्यू जजमेंट्स मतलब यहाँ पे कोई अंदाजा या कोई तुक्का नहीं लगता। जो सही है वो सही है, राइट? लाइक दैट वे। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, द यश, कैन यू रीड द फर्स्ट पॉइंट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? यस, एज दे शुड बी। हम लोग इसमें इमेजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में चले जाते हैं, राइट? वो कैसी होनी चाहिए, वो चीज कैसी होनी चाहिए, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू पे चले जाते हैं। डील्स विद द थिंग्स एज दे शुड बी, वो कैसी होनी चाहिए। आज अगर इसमें 20% इंक्रीज है, नहीं नहीं, इसमें 30% होना चाहिए, तो हम वो जो होना चाहिए वाले चीज में खो जाते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, राइट? और ये ओपिनियंस पे बेस्ड होता है, इसमें फैक्ट्स नहीं आते, ये ओपिनियंस। हमारे हर किसी के ओपिनियंस अलग होते हैं। आज यश के हिसाब से एक चीज अलग होगी, यशवी के हिसाब से अलग होगी, महक के हिसाब से अलग होगी। अगर मैं बोलूँ कि नहीं कलर तो ब्लू ही अच्छा, यश बोलेगा नहीं रेड अच्छा, यशवी बोलेगी नहीं वाइट अच्छा, महक बोलेगी नहीं ब्राउन अच्छा, राइट? ब्लू को तो कोई कलर अच्छा ही नहीं होता। सो दैट इज अवर ओपिनियन व्हाट वी आर शेयरिंग, है कि नहीं? वो हमारा ओपिनियन है जो हम बताते हैं, हम शेयर करते हैं, हम फॉर्म करते हैं कि मेरे हिसाब से ये अच्छा। सो दिस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द इंडिविजुअल ओपिनियंस। एंड एज यू नो बेटा, जितने दिमाग उतनी सोच, उतनी बातें उतने ओपिनियंस। तो आप खुद सोचो कि इसको स्टडी करना कितना डिफिकल्ट होता होगा, बिकॉज वी हैव मच पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, यानी उसके ओपिनियंस कितने होंगे, राइट? ये हम इलेक्शंस के टाइम पे हम लोग देखते हैं यूजुअली, सबके अपने ओपिनियन होते हैं, है ना? इट कैन नॉट बी वेरीफाइड, ये हम वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है, तो हम किसी को गलत नहीं बता सकते। सो वी कांट वेरीफाई दैट, राइट? इट इज सजेस्टिव एंड ऑप्टिमम इन नेचर। सजेस्टिव है, हम किसी को सजेस्ट कर सकते हैं, नो बेटा ब्लू इसीलिए अच्छा कलर है क्योंकि वो डिसेंट है, इट गिव्स रिलैक्सेशन टू आईज, इट इज कनेक्टेड टू नेचर। मैं सिर्फ आपको सजेशन दे सकती हूँ, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती हूँ, राइट? नेक्स्ट, इट डिटरमाइंस द आइडियल्स। वो आइडियल्स को डिटरमाइन करता है, उसका एम होता है आइडियल्स को डिटरमाइन करना, राइट? कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं डिटरमाइन होती है यहाँ पे। एंड इट गिव्स वैल्यू जजमेंट्स, यहाँ पे हमको वैल्यू जजमेंट्स मिलते हैं। ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड। ऐसे जजमेंट्स मिलते हैं हमको जो कि हर किसी के हिसाब से अलग होते हैं। आज एक एलोक्यूशन होता है, आपके हिसाब से वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन आपका जो जजमेंट, जो जज कर रहा है आपको, उसके हिसाब से ये पॉइंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो आपको वैल्यू पॉइंट्स नहीं, वैल्यू पॉइंट्स देगा। हाँ, इट कैन बी मच बेटर। आप बोलोगे यार यार इतना तो अच्छा बोला, अभी बोलते हो मच बेटर। होता है ना ऐसा काफी बार। सो इट गिव्स वैल्यूएबल जजमेंट्स। फाइन, I think this is done for today. Tomorrow we will start with central problems of an economy, as we are already running out of time. Right? Meeting may end soon, so don't worry if you are disconnected with it. Fine. You can ask me any doubt if you have up till now.
Any point or anything you want to discuss, you want to know, you want to ask about? Yes, beta, please. Nothing? No doubts? Yash? Mehak? Are you sure? Easy enough? समझ आ रहा है ना बेटा आप लोग को? अगर कुछ भी चेंज चाहिए, लैंग्वेज अगर मैं कंप्लीट इंग्लिश बोलूँ तो कंप्लीट इंग्लिश बोलूँ या फिर ड्यूअल सही लग रहा है तो ड्यूअल रखूँ? सही है ना? ओके. इफ एनी चेंज यू रिक्वायर प्लीज टेल मी. ठीक है. एंड पीपीटी के थ्रू लर्न होना इज गुड इनफ, है ना? आई विल बी शेयरिंग पीडीएफ विथ यू फॉर टेक्स्ट बुक चैप्टर. ठीक है ना? तो आप लोग उसमें भी आप गो थ्रू हो सकते हो अच्छे से. फाइन. सो टुडे आई एम गिविंग यू सम होमवर्क. You have to write the 5 points regarding micro and macroeconomics by your own, in your own words. ठीक है? Without using Google, without using, I am not going to share this PPT, nothing. आपको जो समझा आपने उसके बेसिस पे आप कोई भी 5 points regarding micro and macroeconomics लिख लेना. ठीक है? Okay, so our meeting will be ending in 2 minutes. और आपके फ्रेंड्स को प्लीज कन्विंस करो. आई मीन कन्विंस इन द सेंस कि वो लोग लेक्चर अटेंड करें, वरना उनका लॉस है बेटा, है ना? तो क्या वो अच्छे से उनका भी साथ साथ में होता